Hello everyone. In previous lecture we deals with the different type of the numericals of the mole concept, and we seen the mole concept is mole can be calculated by using the W by M. If mass is given, if number of particles is given, then it calculated by the N upon Na, and volume is given, then it calculated by V upon 22.4 liter. Is that clear? This is the all types of the mole concept, and we mix all three types of the formula and solve the different types of the numerical, which is the end of the mole concept. वहाँ पर mole concept का क्या होता है? End होता है. mole concept से related जितना भी information था, as well NCERT as well as our foundation course of 11th class, वो आपने complete कर लिया है. कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी मिलेंगे आपके mole concept के. ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व नहीं कराया. विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. इट इज़ गिवन इज द 8 ग्राम H2 एंड 17 gram NH3, and other is the 88 gram CO2, and fourth is 120 gram of urea, NH2C double bond O NH2. Think about the question. क्वेश्चन इज आस्क अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि किस पार्टिकल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है. तो देखो ये तो मास दिया हुआ है, इस मास से अपने को कोई मतलब नहीं है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो आप? सबसे पहले क्या बनाओगे? फर्स्ट यू मेड अप द मोल. सबसे पहले फर्स्ट यू प्रिपेयर द मोल. मोल से क्या बनाओगे? नंबर ऑफ molecule. Is that clear? This is the 8 gram H2. It means 8 gram H2 divided by 2. It is the 4 mole. And we know that 1 mole of every species contain the Na particle. So 4 mole of H2 contain the 4 Na molecule of H2. 4 Na molecule of H2. Is that clear? Second one is the 17 gram NH3, and we know that 17 gram and is the molar mass also the 17. It means it is the 1 mole. It means it contain the only Na molecule of NH3 gas. Is that clear? Third one is the 88 gram CO2. 88 gram CO2 means 88 divided by its molar mass, which is the 44. It gives the 2 mole. It means it gives the 2 Na molecule of CO2. Other one is the 120 gram of urea. 120 gram divided by 60, it is give the 2 mole. It means it is also the 2 Na molecule of urea. Clear? इस अमाउंट इन ग्राम को देख करके आपको डिसाइड नहीं करना है कि किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे. फर्स्ट यू प्रिपेयर द मोल, देन आफ्टर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल. अब यही क्वेश्चन और कैसे हो सकता था? विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से भी पूछ सकता था. ये क्या पूछ सकता था? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. और क्या पूछ सकता था? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. क्लियर? और ये सब मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है. यहाँ पर आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. क्लियर? आगे के भी आप जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उनमें कहीं ना कहीं मोल का अलॉटमेंट जरूर रहेगा, मोल का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा. इज दैट क्लियर? And now we move in the second part of this chapter, which is the law of chemical combination. Basic principle of chemistry के अंदर law of chemical combination इनिशियल के अंदर दिए हुए हैं, but we don't know prepare. लेकिन जब तक हम ये नहीं जानेंगे how can you prepare the number of mole, तब तक इन रूल्स की स्टडी अपन अच्छे से नहीं कर सकते. हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि इनका डेफिनेशन तैयार कर लिया और रूल हो गया. नहीं, look for the definition and after solve the numerical of the question, then we know about the rule. आप किसी रूल को अच्छे से तभी समझ पाओगे जब उसके एक या दो न्यूमेरिकल सोल्व करोगे. क्लियर? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसके अंदर आपके पास 5 रूल है. रूल तो आपके पास 3 थे, लेकिन मैंने 2 रूल और इन्वॉल्व कर दिए हैं इसके अंदर, जो आगे के चैप्टर्स में भी अपने को देखने को मिलेंगे.
in which first is the law of mass conservation, other is the law of definite proportion, other is the law of multiple proportion, law of gaseous volume, Avogadro's law. In this lecture we deals only with law of mass conservation. इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की स्टडी करेंगे। देखिए एक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एनर्जी से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया जाता है, एनर्जी डज नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। क्लियर, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जनरेट नहीं किया जा सकता, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होती रहती है। सेम सिमिलर थिंग अप्लाई ऑन मास। आपके पास चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे से कोई केमिकल प्रोसेस हो, मास नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, इट कन्वर्ट इनटू वन टू अनदर प्रोसेस। क्लियर, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बात सही नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, इतना आगे मैं न्यूक्लियर रिएक्शन पे नहीं जाऊंगा। मास नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical or physical process, it can be transferred from one body to another body, one process to another process। क्लियर, भाई मास को आप न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते, ये एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट का मास आपके प्रोडक्ट के मास के अंदर प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट इनटू 2NH3 गैस। क्लियर, इसका 1 मोल है आपके पास, इसके 3 मोल है, इसके कितने मोल है आपके पास, 2 मोल है। N2 गैस की बात करें तो N2 गैस का जो मास है वो नाइट्रोजन का जो मास है 14 है, और N2 का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास कितना 28 ग्राम। इसकी बात करूँ तो हाइड्रोजन का हो गया आपके पास H2 का कितना होता है 2 and 3 hydrogen, it means it is the 6 and 2NH3 2 into 17, it is also give the 34, and what is the addition of this, it is the 34 and it is the 34। is that clear? तो ये हो गया आपके पास क्या, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को ये रिएक्शन फॉलो कर रही है। नेक्स्ट अपन बात करें कार्बन प्लस O2 कन्वर्ट इनटू CO2। इज दैट क्लियर? इसकी बात करें अपन तो कार्बन का हो गया 12 है, ऑक्सीजन हो गया 32, इट गिव्स द 44 एंड इट इज ऑल्सो द 44। इट इज ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कभी कभी क्या होता है रिएक्शन के अंदर कि रिएक्टेंट का कुछ पार्ट क्या हुआ, रिएक्शन नहीं किया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है CaCO3 है, इसका जो मास है वो कितना है 100 ग्राम है। सपोज इसने कितना रिएक्ट किया 50 ग्राम में रिएक्ट किया। क्लियर, तो आपके पास क्या बना होगा CaO प्लस C2 बना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना है, इसका मास प्लस इसका मास एंड रिमेनिंग मास, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये मास आपके पास आ जाएगा। क्लियर, देखिए इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन जो आपके सामने है, और इसी क्वेश्चन से ही अपन इस लॉ को अच्छे से समझेंगे। बाकी तो 2 एग्जाम्पल थे वो बिल्कुल वेरी इजी एग्जाम्पल थे, उनमें इतना सीखने को इतना लर्न करने के लिए अपने पास नहीं था। क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है, 1.5 ग्राम ऑफ C2H6, दिस इज नोन एज द इथेन। 1.5 gram of ethane on complete combustion gives 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of H2O. Show that reaction obey law of mass conservation। आपको एक प्रोसेस दी गई है कि C2H6 का कम्ब्यूशन करना है आपको। क्लियर, and it gives the 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.7 ग्राम ऑफ H2O। अब आपको ये फॉलो कर बताना है इसके अंदर क्या लॉ ऑफ मास एक्शन का, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का ओबे हो रहा है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं अपन। इट इज द C2H6। क्लियर, एंड कम्ब्यूशन करने का मतलब क्या हो गया, O2 के साथ रिएक्शन है, जला रहे हो, बर्न कर रहे हो आप इसको, देन इट कन्वर्ट इनटू CO2 एंड H2O, CO2 प्लस H2, यही है रिएक्शन। और अमाउंट कितना दिया गया आपको, 1.5 ग्राम ऑफ C2H6, इट इज द 1.5 ग्राम। क्लियर, and CO2 is the 4.4 gram and H2O is the 2.7 gram।
वी डज नॉट, देखो पहला प्रोसेस तो ये है कि आपके पास इसके अंदर O2 का मास नहीं है। क्या नहीं है? मास ऑफ O2 इज नॉट गिवन। आपको ये बताना है कि रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। उसके लिए वी रिक्वायर्ड द मासेज ऑफ द ऑल रिएक्टेंट एंड ऑल प्रोडक्ट बट वी डज नॉट हैव द मास ऑफ द ऑक्सीजन। पहली बात तो ऑक्सीजन का मास नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिएक्शन बैलेंस भी नहीं है, रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं अपन। लुक फॉर द कार्बन, इट इज द 2 एंड इट इज द 1। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कितना लगा लेता हूँ? 2 लगा लेता हूँ। थिंक अबाउट द हाइड्रोजन, दिस इज द 6 एंड दिस इज द 2, सो वी मल्टीप्लाई विद 3। क्लियर? एंड लुक फॉर द ऑक्सीजन, एक ही कंपोनेंट बचा है, 2 2 आर 4, 4 + 3 = 7। क्लियर? अब इन ऑक्सीजन को आपको क्या करना है? 7 बनाना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/2 O2। व्हाट इज द मीन बाई 7/2 O2? देखिए दिस 2 से दिस 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? 7O। यदि ऐसे कोई प्रॉब्लम है और ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास अपॉन के अंदर, तो इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये क्या बन गया? 2। इस 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 2 क्या हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल, एंड दिस 2 बिकम्स 4 एंड दिस इज द 6। इज दैट क्लियर? कितना बन गया आपके पास? ये 6 बन गया। क्लियर? रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? मास ऑफ O2 निकालना है। क्लियर? क्या निकालना है? मास ऑफ O2। रिएक्शन के अंदर देखिए यहां से मैं देखता हूं, इट मीन्स 2 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड द 7 मोल ऑफ O2। भाई हमारे पास क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा इसका मास निकालने के लिए? क्लियर? तो देखिए क्या कर सकते हैं अपन, यहां से O2 के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल ऑफ O2 कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल जब आपके पास आएंगे तो वी नो दैट मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। O2 के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही मोल कैलकुलेट कर लेंगे वी गेट द मोल ऑफ द O2 एंड वी नो दैट मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्लियर? तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ O2 आ जाएगा। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ O2 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि अब इसके O2 के मोल कैसे बनाएं अपन? देखिए रिएक्शन में देखने से पता चल रहा है 2 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7 O2। क्लियर? एंड 1 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड द 7/2 O2। क्लियर? लेकिन रिएक्शन के अंदर C2H6 की बात करें तो ये 2 मोल नहीं दिया हुआ, आपको कितना दिया हुआ है? 1.56 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.56 ग्राम। तो पहला तो ये है कि आप इसके मोल प्रिपेयर करो, किसके? इथेन के मोल बनाओ। क्लियर? और फिर इथेन के मोल, इस देखो क्वेश्चन के अंदर इथेन के, इस इक्वेशन में इथेन के 2 मोल है। इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है वी रिक्वायर्ड द 2 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड द 7 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7/2। लेकिन 1.56 ग्राम में क्या कैलकुलेट करो आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कैलकुलेट कीजिए। क्लियर? इक्वेशन के हिसाब से तो इतने हैं एंड क्वेश्चन के हिसाब से इसके इतने मोल हैं। क्लियर? तो इसके इतने मोल हैं तो ये मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में उन मोल्स को अपन क्या करेंगे? 2 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड 7/2। एंड यहाँ जो नंबर ऑफ मोल आएंगे उनसे हम कह देंगे कि इतने मोल मेरे पास इथेन के है तो मेरे को O2 के कितने मोल की रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्टली जो प्रिपेयर करेंगे अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन प्रिपेयर करना है। क्लियर? देखिए हमारे पास क्या नहीं है? वी डज नॉट हैव द मास ऑफ द O2 बट वी हैव द मास ऑफ इथेन, CO2 एंड वाटर। इज दैट क्लियर?
अब यदि इसके मोल बना लिए जाए तो इसके 2 मोल से इतना रिक्वायर्ड है, 1 मोल से इतना होगा, तो इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1.5 ग्राम गिव्स द हाउ मेनी मोल्स, उतने मोल के अंदर कितने O2 रिक्वायर्ड होंगे। लेट्स सी, N is equal to, this is the 1.5 divided by molar mass of C2H6, 12 multiply with 2 24 plus 6 is the 30। क्लियर। इसको मैं सोल्व करता हूँ, इधर सोल्व कर लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 is equal to N is equal to 1.5 divided by 30, it convert 15 upon 300, it convert 1 upon 20, it is the 1 upon 20 mole of ethane according to the data of क्वेश्चन। क्वेश्चन के डाटाज के अनुसार, क्वेश्चन के जो आपके पास डाटाज दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कितना मोल है C2H6, इट इज द 1/20 मोल ऑफ C2H6। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अब आप उस प्रोसेस पे आइए। प्रोसेस क्या, सिंस बाय द इक्वेशन वी कैन से 2 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड द 7 मोल ऑफ O2। क्लियर। 2 मोल्स ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड 2 moles of C2H6 required 7 moles of O2। Is that clear? And 1 moles of C2H6 required 7/2 moles of O2। Is that clear? Next, how many moles are present according to data of the question? According to data of the question, क्वेश्चन के जो डाटाज है उनके अकॉर्डिंग 1.5 ग्राम के अकॉर्डिंग कितने मोल दिए हुए हैं? 1/20 मोल ऑफ C2H6। सो वी कैन से 1/20 मोल्स ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड O2, इट इज द 7.2 and multiply with 1/20 moles of O2, it means it gives the 7/40 moles of O2। क्लियर। शायद आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब यही बात आपके क्लियर हो जाएगी। क्लियर। लुक फॉर द अगेन द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन के अंदर जो रिएक्शन दी हुई थी वो अपन ने लिख ली, बैलेंस कर ली। आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन वी पुट द all amount of reactant and product, we does not have the amount of gram in of O2 की आपके पास अमाउंट इन ग्राम प्रेजेंट नहीं थी। तो हमने क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इट मीन्स 2 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड द 7 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड द 7/2 मोल ऑफ O2, बट अकॉर्डिंग टू द डाटाज ऑफ द क्वेश्चन वी कैन से 1.5 ग्राम ये है यदि, तो इसका कितना होगा? इट मीन्स 1.5 ग्राम को पहले क्या बनाओ आप? मोल बनाओ, और फिर कहो यहाँ पर आप 1/20 मोल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डाटाज आपको थे उनके अकॉर्डिंग कितना हुआ? 1/20 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड 7/40 मोल ऑफ O2। यानी कि आपने क्या किया, आपको क्या निकालना? मास ऑफ O2 निकालना है, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू दिस 1.5 ग्राम ऑफ इथेन आर प्रेजेंट, देन इट इज द 7/40 मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। क्लियर। और वी कैन से दीज आर द प्रेजेंट। अब आपका काम आसान हो गया है। क्लियर। आपको क्या करना है? मास निकालना है, and you have the number of moles of O2, and we know that mole is equal to mass and divide by molar mass। मोल्स कितने हैं? दिस इज द 7/40, और W कितना है? यही तो कैलकुलेट करना है अपने को इसके अंदर मास। एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द O2? इट इज द 32। क्लियर। देन व्हाट वी हैव,
W इज इक्वल टू 7/40 मल्टीप्लाई विद 32। इसको 4 से कैंसिल आउट कीजिए तो ये तो हो गया 10 और ये हो गया कितना 18 एंड दिस इज द 56 डिवाइड बाई 30 इट इज गिव द 5.6 ग्राम। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन का बेसिस ये था इन मोल के रेस्पेक्ट में इनके मोल निकालें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 दिया हुआ था, देन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 और इन मोल के रेस्पेक्ट में इसके मोल निकाले, देन वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के अंदर क्या निकाल लिया? मास ऑफ O2 निकाल लिया और मास ऑफ O2 कितना आया आपके पास? 5.6 ग्राम आया। क्लियर? नाउ apply the our law mass of conservation. Mass of reactant is the mass of the product. Mass of reactant is the 1.5 gram and this is the 5.6. It is give the 7.1 gram and mass of product is the 4.4. Another one is the 2.7. This is the 7.1 gram. So we can say this equation obey the law of mass conservation. Clear? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।